हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत पानी ठीक है? चलो, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के कुछ 7 जितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए। चलो, फ्रॉम टुडे नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8। 9.8. Just read the question carefully. The piece of copper having rectangular cross section of 15.2 millimeter cross 19.1 millimeter is pulled in a tension with 44,500 Newton force, producing on elastic deformation. Calculate the resulting strain. Okay, here the dimension is given for the cross section. So from the dimension of cross section easily we can calculate cross section area. The force is given and asks about the resulting strain. Then using the data we can calculate area. Then we can say cross section area A is equal to 15.2 millimeter and by 9.1 millimeter. Then we can say its total area is, just a second, then it is 15.2 into 19.1. It is 290.32 we can say millimeter square. Just convert in meter square, then it is 10 raised to -6 meter square. Now the force is given, the F is equal to 44,500 Newton and asks about the resulting strain. Then here the material given as a copper. Just remember the Young modulus of the copper. Then Young modulus of the copper is 1.2 10 to 11 Newton per meter square and asks about the strain. Strain means delta L upon L. बस हमारे पास फॉर्मूला है यंग्स मॉड्यूलस की. Using Young's modulus, Y is equal to, we can say, stress upon strain. Here asks about the strain, therefore we can write strain is equal to stress upon Young modulus. Strain we can say delta L upon L. Stress means F upon A. Then this F upon AY. ये हमारे पास 44,500. Cross section area is 290.32. 10 raised to -6. And Young's modulus for the copper is 1.2 10 raised to 11. Okay, just do the calculation. Then 44,500 divided by 290.32 divided by 1.2. It is 127.73 into 10 raised to. ये होगा तो नीचे 5 होगा, ऊपर -5. ओके, अब इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा L अपॉन L. इट इज 0.12 और 7 में ये 8 कर दो. इट इज 10 raised to -2. इट इज 0.128 10 raised to -2. अब देखो स्ट्रेन है विच इज यूनिटलेस. चलो इसमें अगर परसेंटेज चेंज अगर ऐसा करना है तो भी कर सकते हैं. एक स्टेप और, परसेंटेज change in strain is equal to delta L upon L into 100.
तो ये हो जाएगा परसेंटेज। अब अगर इंटू 100 करेंगे तो ये कैंसर, इट इज 0.128%। अगर ऐसा पूछा है तो, बाकी तो यही हमारा आंसर है। अगर एक स्टेप और पूछ ले तो हम कर सकते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 9। Read the question for the 9. A steel cable with a radius 1.5 centimeter support a chairlift in ski area. If the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square, what is the maximum load cable can support? देखो हमें उसका रेडियस दे रखा है और उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो 10⁸ है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैक्सिमम लोड वो कितना सपोर्ट कर सकता है। ओके, चलो लिस्ट आउट द डेटा। द रेडियस R is equal to 1.5 centimeter, means 1.5 10⁻² meter, and the maximum stress बोला है the maximum stress, you can say sigma maximum, it is 10⁸ Newton per meter square। और उसके लिए हमें पूछा है मैक्सिमम लोड, मतलब F मैक्सिमम पूछा हुआ है। बस तो डायरेक्ट सिग्मा मैक्सिमम हमारे पास है, मतलब फॉर्मूला है, ऐसा कर सकते हैं। यूजिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मतलब F अपॉन K, force upon area is the sigma, then F maximum पूछा है, then it is sigma maximum into area, then sigma maximum into area means pi r square, it is a 10⁸, ये 3.14 into 1.5 का स्क्वायर और इसमें 10⁻² का 10⁻⁴ कर दो डायरेक्ट। ओके, तो चलो 1.5 का स्क्वायर इनटू 3.14, इट इज 7.065 10⁴ न्यूटन। ओके, इतना ये मैक्सिमम फोर्स जो है वो ले सकता है। उससे ज्यादा हुआ तो मे बी केबल टूट जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस बोला है। इससे ज्यादा हुआ तो केबल टूट सकता है। उसके लिए व्हाट अबाउट द मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम फोर्स, इट इज 7.065 10⁴ न्यूटन। ओके, चलो नंबर 10 क्या है सिचुएशन फॉर द नंबर 10? पढ़ लो अच्छी तरह से क्वेश्चन। The rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires, each 2 meter long. Those each end are copper and middle one of the iron. Determine the ratio of their diameter if each have two same tension. देखो यहाँ पर सिचुएशन में दे रखी है कि 3 जो वायर्स है उसको ऐसे 1-2 मतलब end to end में हैंग करना है। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई। अभी यहाँ पर मैंने सभी के डायमीटर्स ऐसे सेम ड्रॉ किए हैं, लेकिन कुछ अलग अलग बोला। सभी की लेंथ सेम, एंड टू एंड जो है वो दोनों कॉपर है, मिडल वन इज आयरन। हाँ, सभी का डायमीटर अलग है, यही तो पूछा है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स इफ टेंशन प्रोड्यूस इन ऑल आर इन सेम। अगर यहाँ पर मास अगर कोई भी हम कर दे, कितना दिया हमें? The 15 kg। अगर 15 kg का मास हैंग कर दे तो यहाँ पर टेंशन सेम होता है, वो हमें बोल रखा है। अब उसके साथ
ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग इन लेंथ इज ऑल्सो सेम, बिकॉज हियर ड्यू टू द चेंज इन डायमीटर टेंशन सेम, देन इंक्रीजिंग इन लेंथ इज ऑल्सो सेम। ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि हियर for all wires tension produced is same। ऐसा भी कर देते हैं कि कंसीडर increase in length is also same, और हमें कैलकुलेट करना है उसका डायमीटर का रेशियो। ओके, तो चलो अब अगर हम यंग्स मॉड्यूलस ही यूज कर देते हैं, दोनों का ऐसा यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे पास है, तो बोल सकते हैं यूजिंग y is equal to fl upon a delta l। चलो यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, ये f l upon a means pi r square delta l। चलो हमें तो डायमीटर चाहिए, then f l upon pi, रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ, तो अगर मैं यहाँ पर डायमीटर लिखूं d स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 4 होगा, एंड डेल्टा एल क्योंकि r जो होगा वो d/2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो d स्क्वायर बाय 4। अब यहां पर अगर देखें तो देखो मास सेम है तो बोल दिया टेंशन इज सेम, तो 4 सेम हुआ, लेंथ सेम दे रखी है हमें। ओके, इंक्रीजिंग इन लेंथ हमने कंसीडर कर दिया, पाई सेम है, 4 सेम है, इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। Therefore, what we can say about the diameter? The square proportional to 1 upon y. That means our interest to calculate diameter, then it is under root of y। चलो अब कोई भी का रेशियो के टर्म्स में ले सकते हैं। Then if we use diameter for copper divided by diameter of iron, then due to the inversely proportional, the y for the iron divided by Young's modulus for the copper. Clear? Then it is diameter for copper divided by diameter of iron. दोनों का ऐसे रेशियो ले लो। देन टेबल में से देखो आयन का यंग्स मॉड्यूलस कितना है। व्हाट अबाउट द यंग मॉड्यूलस फॉर द आयन? इट इज गिवन एज ए 1.9 10⁻11। तो 1.9 10⁻11 डिवाइडेड बाय कॉपर का कितना दिया हमने, तो कॉपर का है 1.2 10⁻11। ओके, it is 1.2 10⁻11 10⁻11 दोनों में से कैंसल। 1.9 डिवाइडेड बाय 1.2 1.9 डिवाइडेड बाय 1.2 जो आंसर मिले उसका रूट ले लो। इट इज 1.258। then you can say 1.26 also। the diameter ratio of the diameter of copper to the iron is 1.26। that's why you can say diameter of copper is 1.26 times of diameter of iron। अगर पूछे कि ये कितने टाइम्स है तो तुम बोल सकते हो। यहाँ तो हमें रेशियो पूछा है तो यही आंसर हम ले सकते हैं। ओके, चलो नंबर 11 क्या दिया हमने नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन तो है वो तो मुझे भी पता है, क्या सिचुएशन है वो देखो कि 14.5 kg mass fastened to the end of steel wire of unstretched length 1 meter is reeled in a vertical scale with angular velocity of 2 revolutions per second. At the bottom of the circle, the cross section area of the wire is 0.065 centimeter square. Calculate
elongation of the wire when mass is at the lowest point of its path। हमें फाइंड करना है mass at the lowest point on its path। तो देखो यहाँ पर अगर हम सिचुएशन देखें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, ये कोई भी हम एक वर्टिकल रिवॉल्यूशन सोच सकते हैं जिसमें ये कोई भी एक सेंटर से और जहां पर मास हैंग किया है और उसका अगर हम वर्टिकल में रिवॉल्यूशन सोचते हैं, देन व्हाटएवर द लेंथ इज कंसीडर्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड दैट इज गिवन एज ए 1 मीटर। ओके, 1 मीटर लेंथ दे रखी है। ओके, और अब यहां पर जो भी फोर्स लगते हैं वो इमेज करो यहां पर। देन वन फोर्स इज ऑलवेज एक्सर्टेड डाउनवर्ड, दैट इज mg ड्यू टू द मास। और पूछा है कहां पर, जो भी ऐसे वर्टिकल रिवॉल्यूशन है उसमें एट लोवेस्ट पॉइंट, मतलब यहां पर पूछा है कि व्हेनेवर मास इज एट लोवेस्ट पॉइंट कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द वायर। एलोंगेशन मींस इंक्रीजिंग इन द लेंथ, तो यहां पर इस वायर में कितनी लेंथ इंक्रीज हो सकती है। ओके, तो यहां पर एक फोर्स तो लगेगा लोवेस्ट पॉइंट पर mg, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स बोल देंगे हम, टेंशन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वायर। नाउ ड्यू टू द रिवॉल्यूशन वन मोर फोर्स इज एक्सर्टेड, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। For the circular motion, the force is centripetal force, लेकिन यहाँ पर due to the revolution होगा centrifugal force away from the radius, and वो होता है mv square upon r, लेकिन r की जगह पर तुम l बोल सकते हो, है ना, क्योंकि रेडियस लेंथ दोनों सेम। तो अब यहां पर ये बैलेंस कंडीशन में तो होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो बैलेंस में है। क्यों बैलेंस में? क्योंकि ये फोर्स से यहां पर ये जो वायर है वो ब्रेक नहीं हो रहा, सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। तो लेंथ में इंक्रीज मतलब ईच एंड एवरी टाइम इट इज द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मास या एज ए पार्टिकल ऑलवेज इन बैलेंस कंडीशन। तो बोल सकते हैं हम यहां पर T is equal to mg plus mv square upon r। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें डेटा क्या क्या दे रखा है, तो हमें तो दे रखा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, है ना। एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो अब यहाँ पर कभी भी हम ऐसे रिवॉल्यूशन तो नहीं चलता यूनिट में, क्या है, रेडियन होना चाहिए। देन इट इज 2 into 2 pi रेडियन पर सेकंड होगा। देन ओमेगा इज 4 pi रेडियन पर सेकंड। वो तो हमने बहुत बार कर रखा है वैसे आगे, कि कभी भी रिवॉल्यूशन हो तो एक रिवॉल्यूशन में कितना इंक्रीज होता है 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन इसलिए 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये हमारा ओमेगा हो गया। फिर क्या दे रखा है, इसका मास हमें दे रखा है 14.5, तो लिस्ट आउट कर दो 14.5 kg। और क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। देन क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.065 centimeter square. Then area is 0.065 into 10⁻⁻4 meter square. इतना हमें ऐसे डेटा दे रखा है, और हमारा ये टेंशन फोर्स हो गया। तो चलो टेंशन को ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। देन इट इज mg plus m। v की इक्वेशन याद करो, यहाँ पर लिख सकते हैं, बट v इज इक्वल टू r ओमेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम v स्क्वायर में r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर करें तो एक r कैंसल, इट इज
आर ओमेगा स्क्वायर। चलो तो अब यहाँ पर पहले टेंशन की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास कितना है? द 14.5, तो 14.5 इंटू 9.8 प्लस, हाँ यहाँ पर ये जो mv स्क्वायर अपॉन आर है इसको तुम एज ए एल लिख सकते हो, है ना, क्योंकि हमने लेंथ एल लिखी। तो 14.5 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है? 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई का स्क्वायर। ओके चलो तो कैलकुलेट कर दो, व्हाट इज द टेंशन? तो 14.5 into 9.8 it is 142, तो 142.1 प्लस, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3.14 टू टाइम्स, मतलब 3.14 का स्क्वायर कर दे इंटू 16 कर दे और इंटू 14.5 कर दे, इट इज 2287.4272 और उसमें ये प्लस कर देते हैं 142.1। ओके तो टोटल टेंशन हुआ इन द स्ट्रिंग इज 2429.5272 न्यूटन। ओके दैट मच ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग। हमें तो चाहिए यहां पर उसकी इंक्रीजिंग इन द लेंथ, तो यह उस मॉड्यूलस से मिल सकता है। ओके using y is equal to f की जगह पर t लिख सकते हो, f l upon a delta l, then elongation means delta l, it is tl upon y into a। फोर्स मिला हमें 2429.5272 into 1, लेंथ तो 1 मीटर ही है। चलो वायर कौन सा दिया है यहाँ पर हमें? स्टील वायर, तो स्टील का यंग मॉड्यूलस हमने बहुत बार यूज किया है ना, इट इज 2 into 10⁻11, तो ये 2 into 10⁻11 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.065 into 10⁻⁻4। तो चलो इंक्रीजिंग इन लेंथ के लिए ये जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 0.065। ओके इट इज 1868.67 एंड 10⁻²। तो देखो 11 माइनस 4 7, ऊपर करेंगे तो -7 मीटर में हुआ। चलो 1.87 कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर ये डिजिट होगा तो यहाँ पर कर देंगे, ये एक एक डिक्रीज करते जाओ, 6 5 4 and 3, तो 1.87 10⁻³ मीटर, क्योंकि हमने 1 2 3 4 डिजिट डिस्प्लेस किए तो -3। अगर -3 है देन एलोंगेशन या इंक्रीजिंग द लेंथ यू कैन से 1.87 मिलीमीटर। ओके आया समझ में कि नहीं? या यू कैन से 1.9 ऑल्सो, 1.86 है तो 1.9 भी बोल सकते हो, 1.87 मिलीमीटर। क्लियर? चलो द नेक्स्ट नंबर 12, लिख देना, ये कैलकुलेशन भी कर देनी है तुम्हें एक बार, और मैंने तो की है, तुम भी ऐसे वेरीफाई करो कैलकुलेट करके। ओके चलो अब द नेक्स्ट वन इज 12।
चलो क्या दिया है नंबर 12 में, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, इनिशियल वॉल्यूम गिवन, प्रेशर गिवन, फाइनल वॉल्यूम इज आल्सो गिवन, एंड कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द वाटर विथ एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सप्लेन द सिंपल टर्म्स व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज। तो चलो जो भी डेटा दिया पहले वो लिख दो। इनिशियल वॉल्यूम को मैं v लिख देता, ओके, इट इज 100 लीटर। देखो कभी भी है वॉल्यूम है वो हम फिजिक्स में लीटर में कभी यूज नहीं करते, आइदर इन सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। देन रिमेंबर द रिलेशन कि 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होगा, कि 1 लीटर इज हाउ मच मीटर क्यूब, दैट इट इज 10⁻³ बिकॉज 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब। ये कुछ रिलेशन है केमिस्ट्री में, है ना, कि 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब, देन 1 लीटर 10⁻³ हो गया। Then we can say it is 100 into 10⁻³ meter cube. This is the initial volume. फाइनल को v डैश लिखते हैं। चलो तो फाइनल कितना दिया 100.5 लीटर मीन्स 100.5 10⁻³ meter cube. And pressure given, pressure is 100 atm. atm means atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो तो दे रखा है कि 1 atm इज 1.013 10⁵ पास्कल। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम होता है, कुछ भी यूनिट में लिख सकते हैं। तो 1 atm मीन्स 1.013 10⁵ पास्कल लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इतना हमें दे रखा है और आस्क अबाउट द बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द वाटर। तो फॉर्मूला है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस की, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर B इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, मतलब PV अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V इज द चेंज इन द वॉल्यूम, वो तो यहां से मिल जाएगा हमें डायरेक्टली। What about the pressure? 100 into 1.013 10⁵. The initial volume, it is 100 into 10⁻³ Now change in the volume. तो change मतलब final minus initial करोगे only 0.5 and 10⁻³ and -3 तो कैंसिल। चलो करो कैलकुलेशन यहाँ पर। तो ये तो बोल सकते हो, ये देखो 100, ये भी 100 मतलब 10⁴ और 5 मतलब 10⁹ कर दो तो सिर्फ इतना ही बचा 1.013 डिवाइडेड बाय 0.5, इट इज 2.026 इंटू 10⁹ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Then bulk modulus for the water is okay। तो ये जो है वो एयर के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है। एयर का बल्क मॉड्यूलस देखो ऐसे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 239 पर दिया है 1 × 10⁻⁴ और ये हुआ 2 × 10⁹ इट इज टू मच लार्ज। ओके, तो क्यों लार्ज है ऐसे, तो बोल सकते हैं कि जिसका डेल्टा V कम होगा उसके लिए बल्क मॉड्यूलस लार्ज है, मतलब जो वाटर है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, एयर को कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो एयर जो है वो जितनी ऐसे अंदर वॉल्यूम में हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो जितना हम कंप्रेस कर सकते हैं उसका जो है वो बल्क मॉड्यूलस है वो कम होता जाएगा। लेकिन जिसका डेल्टा V स्मॉलर है तो उसका बल्क मॉड्यूलस लार्ज आएगा। तो बोल सकते हैं कि वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस एज मच एज
air. That's why the bulk modulus of the water is too much large than the air. ओके, ऐसा लास्ट में लिख देना. देखो यहां से नीचे लिखना है कि the water cannot be compressed as much as air. So the bulk modulus of water is too much large than air. चलो नंबर 13. क्या है 13 में? What is the density of the water at the depth where pressure is 80 atm? Given that density of the surface is 1.03 into 10⁻³ है. हाँ, ये ऐसा नहीं लिखा कि 1.03 into 103. ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है. 1.03 into 10⁻³ kg/m³ है. तो चलो यहाँ पर हमें डेंसिटी एट डेप्थ पूछी है हमें. ओके, और प्रेशर हमें दे रखा है एट डेप्थ. तो प्रेशर एट डेप्थ इज 80 atm. चलो प्रेशर को लिख दे हम 80 atm मींस 80 into 1.013 10⁻⁵ पास्कल या फिर Nm/m². ओके, इतना हमें ऑलरेडी आगे भी दे रखा है. ये 1.013 10⁻⁵ पास्कल, अदरवाइज Nm/m². इतना है, कैलकुलेशन हम बाद में कर देंगे इसकी. और फिर डेंसिटी ऑफ द सरफेस है हमारे पास. डेंसिटी ऑफ वाटर एट सरफेस, जिसको रो से डिनोट करते हैं, और वो दे रखी है हमें 1.03 10⁻³ kg/m³. और हमें फाइंड करनी है डेंसिटी एट डेप्थ. डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 atm, जिसको हम रो डैश से करते हैं. ओके, अब डेंसिटी फाइंड करनी है. डेंसिटी का रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, है ना, और वॉल्यूम जो होगा उसका रिलेशन है बल्क मॉड्यूलस के साथ. तो यहां पर हम बल्क मॉड्यूलस से स्टार्ट कर सकते हैं. यूजिंग बल्क मॉड्यूलस B is equal to P upon डेल्टा V upon V. ओके, चलो ऐसा कर देते हैं. डेल्टा V upon V को ही सब्जेक्ट कर देते हैं. देन इट इज P upon V. चलो अब वॉल्यूम का रिलेशन डेंसिटी के साथ. तो फॉर्मूला है हमारे पास हियर डेंसिटी rho is equal to m upon v. Then what we can say about the volume? Mass upon density. और यहाँ पर जो भी हमने बल्क मॉड्यूलस यूज किया है उसमें थ्योरी में हम बोलते हैं कि नेगेटिव साइन है, लेकिन whenever we are solving the numerical, at that time we will use the positive value of the delta v. तो पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे तो फॉर्मूला में भी पॉजिटिव यूज करेंगे. ओके, इसीलिए हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब कभी भी यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे. ओके, चलो तो ऐसे डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू P/B. और वॉल्यूम हो गया हमारे लिए मास अपॉन डेंसिटी. तो ऐसे अब जो ये हम इनिशियल बोल दे तो फाइनल के लिए V डैश बोल देंगे. Therefore V dash is equal to m upon rho dash. Then what about the change in volume? अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पर हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिखा है तो बोल देंगे इनिशियल माइनस फाइनल. मतलब डेल्टा V को क्या लिखेंगे? V माइनस V डैश अपॉन V इज इक्वल टू P/B. ओके, चलो अब वैल्यू. तो ये हुआ m अपॉन रो माइनस m अपॉन रो डैश अपॉन m
देखो अब मास कॉमन लेके कैंसल, देन 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन रो डैश अपॉन 1 अपॉन रो इज p बाय v। तो देखो ये तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। अब न्यूमरेटर में ये रो आया, उसको इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो रो अपॉन रो इज 1 और ये हो गया रो अपॉन रो डैश। क्लियर हुआ? वंस अगेन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो रो इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो रो अपॉन रो इज 1 माइनस रो अपॉन रो डैश इज इक्वल टू p बाय v। अब कंसंट्रेट करो कि हमें तो कैलकुलेट करना है रो डैश। चलो यहां तक लिख देना पहले वीडियो पॉज करके, ओके। अब करो यहां पर पहले तो रो अपॉन रो डैश को सब्जेक्ट करो, तो जो नेगेटिव है इसको इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव, ये यहां पर आएगा तो नेगेटिव, मींस इट इज 1 माइनस p अपॉन v। ओके चलो अब पहले यहां पर इतनी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 1 माइनस प्रेशर कितना दिया हमने, तो प्रेशर इज 80 atm मींस 80 into 1.013 10⁵ डिवाइडेड बाय b बल्क मॉड्यूलस। तो किसका चाहिए वो बल्क मॉड्यूलस? वाटर का। तो वाटर का बल्क मॉड्यूलस देखो टेबल के अंदर, देन बल्क मॉड्यूलस फॉर द वाटर। तो वाटर का बल्क मॉड्यूलस हमें दे रखा है 2.2 10⁹, पेज नंबर 239 पे देखो बल्क मॉड्यूलस फॉर वाटर कितना है 2.2 10⁹। देन रो अपॉन रो डैश 1 माइनस, चलो करो कैलकुलेशन इसकी, 80 into 1.013 divided by 2.2, it is 36.836 है और 10⁻² -4 हो जाएगा, -9 + 5। इसका मतलब रो अपॉन रो डैश हुआ हमारे लिए 1 माइनस, अब ये 10⁻⁻4 है, उसको ऐसे पॉइंट पर डिस्प्लेस करो, देन 0.00368 होगा कि नहीं? 4 डिजिट डिस्प्लेस करने पर, तो 1 माइनस करो पहले इसकी वैल्यू, तो 1 माइनस 0.00368 इट इज 0.99632, इट इज रो अपॉन रो डैश। हमें तो चाहिए डेंसिटी रो डैश, देन रो डैश इज रो अपॉन 0.99632, then what is the density? Density is 1.03 divided by 0.99632, it is 1.033 हुआ और 10⁻² में तो है 3 kg/m³, मतलब बहुत स्लाइटली चेंज आएगा। ये भी तुम बोल सकते हो 0.99 मतलब 1 हुआ, मतलब द सेम डेंसिटी, मतलब जो भी हमें दे रखा है कि डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज 1.03 10⁻³ है, और उतने डेप्थ पर कि जहां पर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 80 टाइम्स है, देन आल्सो देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। यहां पर हमने मास कैंसिल किया, तो क्यों मास कैंसिल किया? मास ऑफ वाटर तो कांस्टेंट होता है, डेंसिटी चेंज होगी तो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी चेंज हो रही है, मास तो कांस्टेंट है। और डेंसिटी में भी देखो कितना चेंज आया, 1.033 लास्ट है, 1.03 इनिशियल, इट इज 0.003, इतना चेंज हुआ, मतलब नेग्लिजिबल। तो जो भी ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 80 टाइम्स जितना प्रेशर है वाटर के डेप्थ में, इतना डेप्थ में है, देन आल्सो देयर इज ए नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और इसीलिए हम ऐसे वाटर में डेप्थ में चले जाए तो ऐसा कभी फील नहीं होता कि वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होती गई, है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही
बस चेंज होता है लेकिन बहुत ही माइनर। तो ये जो है बस माइनर चेंज है, लेकिन वो हमें कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सेम टू सेम है, कैलकुलेशन के बाद बोल सकते हैं। ओके।